very good morning to all the viewers of Analytica Ayurveda. Today we are coming with an interesting session on nutritious and assuring safe food. Today we are discussing about the pink book developed by FSSAI as we are celebrating the September month as Poshan Maah. Let us begin with this session by welcoming sir into this session. I welcome you sir to this session. Thank you. Yes, thank you, Dr. Monisha, for taking this task of the pink food, pink book. See, the whole September month is being celebrated all over country as a Poshan Maah, and many programs are being organized by several government organizations as well as the NGOs. So it's targeted to aware the people about the type of the food they are taking and what should be the precautions to keep them healthy, and it is part of the Eat Right India movement, and we are discussing, and this is your in the month of September this is the third, because we have covered orange book, then with the Aparna, and then we have covered purple book with the Preeti, and now the pink book with you. And certainly it is not the end, because during the discussion we felt that these books should be continued to be in the telecast of the Analytica Ayurveda, because just 40 minutes is not sufficient and not justice to these books of the 100 pages, and we can't make everything in a very summary form that is not serving the full purpose of our interaction with our learned audience. So we will take it in a future course also, but we are making sensitization about all these books first to our all audience, and then we will take surely we will take the detailed part of this right from the workplace, that is the orange book, and the purple book will certainly it will be the continuous. We have covered the dengue, and next we are going to cover in the month of October cancer. What you eat to in the cancer. See, in the dengue we got very interesting fact that the whole people are running behind the goat milk. But when we searched out, nothing we found substantial about the role of goat milk in the production of the platelets. Whereas papaya is well established, and this is the revelation we got from the purple book. And one more, that take the yogurt, and that is helpful in the production of the platelets, and in this support there are some good papers also. So in the same way today, when you are starting the pink book, before starting, and it is the second edition what we are taking in our consideration, published on the 2nd June 2019, and the editorial board chief is none other than the Miss Rujata, who is a signature in the field of nutrition. And as far as I know, all the top cine stars, I can't tell the name because there may be something. Because see, nowadays you have to be very cautious. If I am saying that this fellow is the client of Rujata, and then if he or she will not be, then there is a conflict of interest. But I know that a lot of top cine stars are her client. Not only the cine star, the sport person, politicians. That class section which make them, which are at the top, industrialists. They are all the clients of the Rujata. I know, I have heard in her interview or in some other things that who are their clients. But see, there is some agreement, and we all should be aware about all this, to whom name or to whom not to name. Yeah? This is also you have to learn, Monisha and you all, that everywhere you can't quote every name, because there is these celebrities having something like copyright. Their name should be used or not, right? Even the Mahanayak Amitabh Bachchan is fighting the case for his voice. Huh? So these things you have to be aware. किसी का भी कहीं भी नाम नहीं ले लेना है कि ये उनके हैं या ये उनसे कंसल्ट करते हैं.
बहुत सारी कंट्रोवर्सी जिससे क्रिएट हो जाती हैं। एनीहाउ, अभी देखिए सबसे पहले तो आपको और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, और हमारे प्रधानमंत्री जी हर काम स्टाइल से करते हैं, है ना? हर काम क्या करते हैं वो स्टाइल से करते हैं। अभी जब लोकसभा और राज्यसभा में जब ये पास हो रही थी, बहस पास हुआ, तो उन्होंने टॉप क्लास जितनी भी वुमेन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, स्पेसिफिकली एक्ट्रेसेस को बुलाया, और दे आर विटनेस ऑफ दिस। दे आर मतलब he invited everyone who matters. Tomorrow he is going to inaugurate one international cricket stadium in Banaras, first in the Ganjari. Tomorrow our honorable Prime Minister is visiting his parliamentary seat Kasi, right, Banaras? And see, in the inauguration he invited everyone of that team who won first World Cup for India. That is the 1983. They are coming. Dilip Venksatkar, Kapil Dev. They are all are tomorrow in Banaras in the foundation stone ceremony of the International Cricket Stadium, right? So हमारे प्रधानमंत्री जी हर चीज़ स्टाइल से करते हैं, ठीक है? तो उसमें नारी बंधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप ये बताइए कि आपको ये पिंक शब्द कैसा लगता है? इस किताब का नाम पिंक क्यों दिया गया? Let me ask to you first before you ask any question to me. पिंक जनरली डिनोट करता है फेमिनिज्म को, Okay. एंड फीमेल्स जो है वो हमारा किचन जो रसोई घर है वो संभालते हैं सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें जो हमें किचन में कैसे रखनी चाहिए क्या है, वो सब चीज़ें इसमें से बताई गई हैं। Right. और मेनली ये एक बोल सकते हैं हमसे ब्रह्मास्त्र है फीमेल्स के लिए कि हमें किचन में कैसे सब चीज़ों को डिफाइन करना चाहिए। अच्छा, this is, you think the pink color is denoting feminism. Okay, so the name of this book is the Pink Book. Okay, fine. How much you agree that the kitchen should be mastered by the female only? It's your personal opinion. Sir, I agree sir कि in daily life females ही किचन संभालती हैं, and I'm not saying कि males नहीं संभाल सकते हैं। That is the point. Dominantly females where I want your attention, handling the kitchen. where I want your statement, because see, the scenario has been changed, and whenever I am quoting the Pink Book since last 5 years, 6 years, yes, this is the second edition. Whenever I am discussing with the issues with my co-learners, PG and the doctorates, and even in the CMEs of the teachers of the Rasas and the FSSAI, when you are talking about the nutraceuticals, or other places also in different titles, and when I use this Pink Book cover picture, I always used to say this is the book showing the picture of a woman known as the Pink Book, but you all men should be aware you have to learn a lot of things from the Pink Book, right? So it should be a now it's very much common phenomenon. हाँ, आजकल तो मैट्रिमोनियल्स में भी गर्ल्स आपकी इसकी लिखती हैं कि हमको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो किचन में भी कोलैबोरेट करे, और वो तो मैट्रिमोनियल्स में लिख के आता है। तो नाउ द नेम पिंक बुक इज द फाइंड, and okay, so and as you know that story, the picture is also one picture of the cast by the Amitabh Bachchan. Yes. What was the name? The Pink. The Pink. The Pink. So this is the Pink. Now the Pink book is for you, not only for the women, but for the men also. पुरुषों को भी रसोई में जाना चाहिए। अब ये अलग है कि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें कि मैं कितना रसोई में गया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट लाइफ में आई मेड माय फूड फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज आउट फ्रॉम some period during my BSc, when hostel was not allotted in that very short period. I mean to say कि खाना बनाने आना चाहिए, है ना? और समय हो तो खाना ज़रूर बनाना चाहिए, पुरुषों को भी, महिलाओं को भी,
खैर तो उनका एकाधिकार है, इसलिए इनसे मैंने पूछा कि पिंक बुक नाम क्यों रखा गया, तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि पिंक बुक नाम इसलिए रखा गया. वेल एक्सप्लेन. It is unexpected question for you. Huh? Okay, thank you. Just proceed. Let us begin the session. The pink book mainly, it is a hidden treasure of having a kitchen well established. Not only the interior design of the kitchen, but how things should be kept, how the things should be purchased. And now sir will describe why the pink book is there in FSSAI and what is the motto of this book. Sir, can you please describe us about the pink book? Yes, thank you, Dr. Monisha. I'm fond of the pink book because this has given me some material since last 5-6 years to talk with the wherever I am addressing, whether the teachers or the students or the even the government meetings. I use the do's and don'ts of the pink book frequently to teach the people, and people were very happy that oh, this kind of the book is existing. And the first is the pink book from the FSSAI. Orange book, purple book, dot book, everything is the later. The जायका बिना तड़का ये सब उसके बाद आया है. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि FS देखिए डॉक्टर मनीषा बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं एनालिटिकल वेदर कि सर हिंदी में ज़्यादा बोलिए. ठीक है, देखिए हम लोग बैलेंस बना करके रखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ चलेंगे. एक ने तो अभी कमेंट में लिखा था कि सर आप पता नहीं क्या क्या बोल गया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया. तो बाय द वे शी इज फीमेल आल्सो. तो मैडम हम दोनों भाषा में बात कर रहे हैं और आपको कोई प्रश्न है तो जैसे कि आपने ये जो लिखा है कि आप क्या क्या बोल गए हमारी समझ में नहीं आया, आपने अंग्रेजी वर्तनी में लिखा है, हिंदी वर्तनी में नहीं लिखा है. तो इसका मतलब सीधे यही है कि अंग्रेजी से तो आप परिचित हैं, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल पर आपको उसमें सिग्नल होंगे हिंदी में लिखा है. तो भाषा का जहाँ तक प्रश्न है तो चलिए सितंबर में तो पोषण माह के साथ 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, शायद उससे प्रेरित होकर के आपने लिखा हो. लेकिन भाषा कोई इशू नहीं है. भाषा इशू ये है कि आपको समझ में आना चाहिए. तो अगर हिंदी ज़्यादातर समझ में आती है तो मैं हिंदी में भी पूरा प्रयास करता हूँ कि हिंदी में ही बोलें और अंग्रेजी में भी प्रयास कर लेता हूँ कि अंग्रेजी में भी बोलें. तो दोनों भाषाओं का समझ में आने लायक एक बातचीत चलती है. तो पिंक बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है शुरू से ही और इसको मैं बहुत इज्जत देता हूँ. मैं इसको चाहता हूँ कि ये पूरे हर हाउस होल्ड में मेरा एक जिसे कह सकते हैं ना आपकी मेरा एक सजेशन है, एक ड्रीम है कि मैं ये कहा करता था कि जस्ट डाउनलोड द पिंक बुक फॉर कीप इट इन योर डाइनिंग टेबल एट सेफ प्लेस and turn out the pages of the pink book when you are doing anything regarding your food. Right from purchase, selecting the food, at what day, what food should be there, what you are going to eat, what to purchase, when to purchase, what are the parameters there, how to store and when to use, how many days in the fridge and after that you can use, whether it should be kept in the fridge or not. And if you are keeping it in the fridge for storage purpose, how many days? And this is different for the different materials. Specifically, if you think about the fruit, vegetables, dairy products, meat, egg, etc., etc., all these things. So, respected dear viewers of the Analytica Ayurveda, once again, this appeal is a very larger way. Before this, I made this appeal in a group of 30 people in the CME or the group of 50 people in the class or the group of 10 people in the meeting of the Government of India. But here I am appealing to you all in a very larger way, in the larger canvas, whosoever is listening us, our interaction with Dr. Monisha at from the every corner of the globe, that download the pink book from the FSSAI website, Food Safety Standard Authority of India. Get it printed, and the colored print. You will be happy with this colored print of the pink book. Preeti got the print of the purple book, and it is very good to see. And the same way,
Monisha will also get the print of the pink book color in the next step. So get it in the printed form. Okay, you will say environment, etc. etc. Okay, you may go on the mobile, but printed form, and turn the pages when you are entering into the kitchen and when you are doing anything. Here are the 9 sections, and every section is dealing with a different theme, and that theme is directly related to your kitchen. One thing be very clear, very clear. What is that? You are not eating for the fulfilling your stomach. Yes, क्षुधा का शांत होना जरूरी है, भूख का शांत होना जरूरी है. Hunger should be subside, and the satiety center of the brain should be fully content, right? And it's the stage of the satisfaction. Fine, I do agree with this. But the one thing here, and Dr. Monisha, you will be agree with this, that the nutritional value is also very important. Okay, what nutritional value you can manage, what the items to provide the nutraceutical values you can manage in your daily routine, 2 meals and the breakfast and the snack, what beverages, what kind of the beverages, what kind of the food you can manage as per your economical level. And it is a very, very much different in our country. You know, BPL series, below poverty line, then the middle class, then the middle class, right? Then upper middle class, right? Then a sect of the different sect of the bureaucrats, different set of the officers of the defense or the anything. In anywhere you will get all these things. If you government job, then from office assistant to the director. So this indicates what? In the top motive in this list, Ambani and Adani, what they are eating, what is in the kitchen of superstar Amitabh Bachchan in the Jawan movie, star Shah Rukh Khan, who is making a lot of sense nowadays on the box office. Have you seen Jawan? No, not yet. Okay. Try to manage your time to see it, because see, it's of course it's a film, and why I appreciate this film, because the director of the story is very, very interesting. The person who directed, Akil Kumar, you know, he returned from the Mumbai back few years, I mean more than 10 years maybe, from the bungalow of the Shah Rukh Khan. He was not allowed to enter into the bungalow of Shah Rukh Khan. Okay, and see his talent. Now he is directing something. For this purpose, I want to say you. I want to convey the message to everyone. Okay, the film Jawan is having a message with all the stunts of the film to be super hit, drama, dance, songs, but there is a message also in that movie. Okay, so I started with the kitchen of the Shah Rukh Khan, and I shifted to the movies of the Jawan. This is the bad habit of the thesis, you know. They wanted to convey everything to their co-learners, students at every moment. I want to say that, see, this is the case. That director, I'm making this point again and again. That director who directed this film, Chennai Boys, he was not allowed to meet or see the bungalow of the Shah Rukh Khan. Now he is by his own, he is directing Shah Rukh Khan at this time. So you, Monisha, are all Preeti, whosoever is here in the Department of Rasad at the time Banaras University at the moment. Here is the thing. Suppose you are thinking to meet with the WHO Director General, Dr. Tedros. Why I should say the few names, or the NIH DG or the NCCIH Director. You may be at that place in due course of time if the alternative medicines have been given opportunities to be the WHO DG, or even this GCTM, Global Center of the Traditional Medicine. See, this is the policy they have. Okay, we are establishing the
GCTM in India, but the first director of the GCTM of India will not be from India. This is the WHO condition. Okay, it may be fair with some administrative point of view. Every line has different meanings. So you or anyone who is listening at your stage, you may be at top place. So coming to the pink. This is really thing which you must download, print, and go through its section, follow it. I was talking about the nutraceutical items on your platter. So you may do one thing. Directly from farm to your table. That is the best. किसान के खेत से, ठीक है, सीधे आपके सब भोजन की थाली में आए, राइट, वो सबसे अच्छी क्वालिटी न्यूट्रिशनल है, राइट। अभी जरूरी नहीं है कि हर आदमी 600 रुपए केजी का कीवी खाए, वो 50 रुपए किलो के अमरूद ले लिया। बस ये नॉलेज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको 1200 रुपए किलो का नॉर्मल बादाम मिलता है। टॉप क्लास बादाम तो ऑस्ट्रेलियन बादाम और अमेरिकन बादाम, ये सब मार्केट में जाइए और FSSAI की सैम्पलिंग देखिए। हम सब तो इसको धीरे धीरे बात करेंगे अभी, लेकिन मैंने वही कहा ना कि पिंक बुक को 40 मिनट में नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन हम खाली सेंसिटाइज कर रहे हैं आप लोगों को। अब आपको 400 kg का भी बादाम मिलेगा, जो उसकी न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू है, टेक इट द न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू, आई एम नॉट सेइंग द स्टेटस वैल्यू, न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू मूंगफली में मिल जाएगा, कहाँ मूंगफली में भी मिल जाएगा। तो आपको ध्यान किस चीज का देना है? न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू का, न कि स्टेटस सिंबल का। यहाँ से लेकर के, जो मैंने कहा कि BPL से लेकर के इलाइट, टॉप इलाइट तक सबको न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, और सबकी पॉकेट के स्टेटमेंट के हिसाब से नेचर ने न्यूट्रिशनल मटेरियल्स दिए हैं, और वो जानने के लिए आपको पिंक फूड में जाना होगा, सॉरी पिंक बुक में जाना होगा। और वो आप तभी जा सकते हैं पिंक बुक में। हमेशा ये मोबाइल को उठा करके ऐसे स्क्रॉल मत करिए, उसका एक प्रिंट लीजिए और अपने किचन टेबल पे एक शानदार जगह पर रखिए, या आप जहाँ भी रखना चाहते हो अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए, अपने जिस टेबल पर भी रख लीजिए, लेकिन अप्रोच हो, आप किचन में जाएं तो पिंक बुक आपको दिखाई दे। माय पॉइंट इज दिस, व्हेन यू एंटर इन योर किचन यू मस्ट सी द पिंक बुक, और जब आप पिंक बुक देखेंगे तो आपको ढेर सारी चीजें याद आएंगी। जैसे कि आप रिमाइंडर्स लिखते हैं ना, व्हाट टू डू, ये काम इतना कर लेना है, तो आप किचन में घुसने के पहले एक पिंक बुक ऐसे साइड में स्टैंड बनवा लीजिए, उसी में डाल दीजिए। जब भी आप किचन में घुसेंगे आपको पिंक बुक दिखाई देगी, तो आपका खाना अपने आप न्यूट्रिशनल वैल्यू का हो जाएगा। यस प्लीज। One thing is there, every time we can't Google everything. So this is definitely a very good option to have the pink book in our kitchen, because the pink book not only depicts what should be eat or in what amount should be eat, but also from purchasing, storing, preparing food to serving and eating healthy. And also the last 2 sections of this book is depicting about the maintaining hygiene and sanitation in the kitchen. This is very important. Very important. And the most important. Yes, the most important thing is how to maintain hygiene and sanitation. And the thing is that there is no specific borderline to know about the things, like we have to eat this or this, or not only the medicos or the people belonging from the medical science should be aware of this, but also the local public, also the laymen should be aware of this, like what should be purchased, from where should be purchased, and how should be purchased, or where should be kept, and how should it be stored in our kitchen, and how we are preparing food. Like preparation from ancient time, we are seeing that we are aware of the things that preparing food is in a very simple manner. And those classical methods of preparing food is amazing. Yes, it's definitely playing a vital role. And
in our classic also it has been mentioned like शुद्धता के साथ किचन में प्रवेश, स्नान करके किचन में प्रवेश, क्या वस्त्र धारण करना है वो प्रवेश। चलिए आज के ज़माने में तो संभव नहीं है, लेकिन जब बात उस पर आती है, हाँ मैं कह सकता हूँ कि आज के ज़माने में संभव नहीं है। हमारा ज़माना मॉड्यूलर किचन का है। सॉरी डॉक्टर मोनिशा, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। बड़ा अच्छा लगता है कि क्या कहाँ बैठ के खाना खाना है, थाली सामने रखनी चाहिए, और आसन कितना ऊंचा रहना चाहिए, पालथी मार के नीचे बैठना चाहिए। अब वो चीज़ें तो देखने, सुनने और पढ़ने में अच्छा लगता है, और कभी कभी करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें युगानुरूप चलना होगा तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो बात हाइजीन की आई, जो डॉक्टर मोनिशा बोल रही है कि हाइजीन द क्लास 2 सेक्शन, मैं वो कहता हूँ कि वो सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चन। we will today discussing about the purchase of the very first section of the book, that is the purchasing strategy or how to smart shop, like what we are buying and from where we are buying, like earlier sir has mentioned from farm to direct to table, like आप direct farm से table पे लाइए, बीच में जो चीज़ें मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर एडल्ट्रेशन हो रहा है उससे हम कैसे बचें, उसका ज्ञान हमें कैसे हो, वो सब चीज़ें हमें पिंक बुक में जानने को मिलेगा। Let us proceed with the first section, that is the purchasing section and how to shop smart at the market. Sir, can you please explain? या प्लीज। ये तो डॉक्टर मोनिशा हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन खुद भी पढ़ के आई हैं पूरा पिंक बुक, लेकिन ये एक होस्ट और इंटरव्यूअर की गरिमा को ध्यान में रख रही हैं, ये खुद भी बता सकती हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग दोनों लोग मिल करके आपको ये बताना चाह रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है ना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के शास्त्र में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस फॉर्म को अपनाया है। नहीं तो एक मैं वीडियो में बना दूँ सीधे इसी के ऊपर पिंक बुक पर अकेले बोलता जाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे इन्वॉल्व करना है, और इन्वॉल्व करने के लिए मैं एक ये संडे का इंटरव्यू सेशन रखा हूँ। चलिए, शॉप स्मार्ट, क्या क्या आपको इसमें करनी है। आपको अनाज, मोटा अनाज भी खरीदना है, आजकल तो मिलेट्स का ज़माना है, उसको भी खरीदना है, गेहूँ खरीदना है, चावल खरीदना है, तेल घर में खरीदना है, डेयरी प्रोडक्ट खरीदने हैं, फ्रूट्स खरीदने हैं, वेजिटेबल्स खरीदने हैं, सब तो खरीदना है। हाँ, सब तो खरीदना ही है, तो आपके किचन गार्डन में होता हो। तो देखिए, जहाँ तक मैं फॉर्म की बात कर रहा था, आई एम सॉरी टू से कि फॉर्म में भी बहुत मैनिपुलेशन आजकल होने लगे हैं। किसान भी अधिक उत्पाद के लिए या किसी भी लालच में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने लगा है अपने क्रॉप्स को उगाने में, सब्जियों को उगाने में, फल को तोड़ने में, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दे यूज सेवरल पेस्टिसाइड्स इन द डेंजरस अमाउंट, दे यूज ऑल दीज थिंग्स, राइट? एंड इन द डेंजरस अमाउंट and when they are, that is not very much clean, it is something like that, it may be harmful. They are injecting some hormonal injections to the vegetables, to the fruits, and saying that high yield production, kg rate. You must be aware about all these things. They are making polish on the brinjals, they are making polish on the apples, they are making wax polish to give them shine. तो बाजार में कुछ भी खरीदने जाइए तो चमक दमक पर मत जाइए। पहली चीज, कोई भी चीज आपको दिख रही है, बड़ी अच्छी दिख रही है, चमक रही है, उस पर बिल्कुल मत जाइए। प्राकृतिक टमाटर खरीदिए, प्राकृतिक रूप से जो सेब दिख रहा हो बिना किसी चमक के वो देखिए, जो बैगन दिख रहा हो प्राकृतिक रूप से उसको दीजिए। कोई भी सब्जी जो बहुत चमक दमक के साथ, या कोई भी जो फ्रूट्स आपको बहुत चमक दमक के साथ शाइनिंग स्टार दिख रहा हो, उस पर हाथ मत लगाइए। नंबर 2, सीजनल सब्जियां खरीदिए। जैसे कि कभी कभी ला देते हैं लोग, क्या मई जून में गोभी खरीद के ला देते हैं, मार्केट में मिल रही है, लोग लाते हैं। मैं बहुत नाराज होता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, ये मुझे नहीं खाना है, ये मुझे नवंबर दिसंबर में ही खाना है। तो एक दिन बड़ा इनोसेंटली जो हमारे सब्जी लाते हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये कोल्ड स्टोरेज से नहीं आ रही है। मैंने उनको कहा यार कोल्ड स्टोरेज से खाली सब्जी खा के ला रहे हो? कह रहे नहीं साहब, ये कोल्ड स्टोरेज की सब्जी नहीं है, सीधे खेत से आ रही है। मेरा क्या मतलब, इस समय मई जून में भी बनारस में गोभी हो रही है। तो वो बोलते हैं नहीं, आजकल ऐसी प्रजातियां डेवलप कर ली गई हैं कि हर जगह हर सीजन में चीज़ हो रही है।
और मुझे इस पर विश्वास करने का मन भी करने लगा। आपको पता है बनारस में सेब की खेती हो रही है जो कश्मीर से आता था, और इस पर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और सेब की खेती 5 एकड़ में किसान कर रहा है, उसको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और दूसरे किसान भी उसमें लग रहे हैं। तो फिर भी ये सब टेक्निक्स के बाद भी मैं बनारस के सेब के किसान उत्पादक की सराहना करता हूँ। जरूर अच्छा काम कर रहा होगा और अच्छा शायद उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जब चेक होगी तो शायद सेम ही है, और टेस्ट मुझे नहीं पता टेस्ट कैसा होगा क्योंकि मैंने खाया नहीं, और बिना ये मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ना तारीफ करूँगा उनके प्रयास की, लेकिन उसके उत्पाद में क्या है और कितना सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि ये भी तो देखना है ना, हर जगह पहुँचना चाहिए ना। कश्मीर से जो आ रहा है वो ट्रेवल में, या हिमाचल प्रदेश से जो आ रहा है उसका ट्रेवल कास्ट और वो उसका बिगड़ने का चांसेस, और कहाँ आपको सीधे मिल रहा है, सारी चीज़ें देखनी होंगी डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि नहीं गोभी हमारी खेत से आई, तो देखिए मत खाइए गोभी को मई जून में, गोभी को नवंबर दिसंबर में ही खाइए, ठीक है। जो सीजन प्राकृतिक सीजन, इस दक्षिण भारत में आम जाड़े में भी मिलता है, मगर उत्तर भारत में आम गर्मियों में मिलता है। तो जब दक्षिण भारत में जाइए तो जाड़े का आम खाइए, उत्तर भारत में आइए तो यहाँ गर्मी का आम खाइए। मेरे कहने का मतलब है जिस जलवायु पे, जिस धरा पर, जिस भूभाग में आप हैं, उस भूभाग में उस समय प्राकृतिक रूप से होने वाली सब्जी फल का ही सेवन करें। कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई और जो सप्लाई फिर आती है महीनों महीनों बाद, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। स्वाद के लिए भी वो स्वाद नहीं मिलता है। आप तो स्टेटस सिंबल में खाते हैं ना, क्या देखा हम खाते ही मई जून में गोभी हमारे घर में बना लो, मतलब थोड़ा बनारसी आप लोगों को सुना देना, रहते रहते हमने भी सीख लिया है बनारसी। अरे मैं बनारस से इंटरमीडिएट भी किया हूँ, उसलिए मैं रहते रहते नहीं बना, मैं भोजपुरी और बनारसी दोनों बोलता हूँ। हाँ प्लीज। हाँ उसमें मुझे जो कुछ एक चीज़ और बतानी थी कि आप कैसे क्या क्या खरीदें मोटा मोटा। हाँ डूज एंड डोंट्स, तो इसको एक समराइज कर देते हैं और फिर डिटेल्स लेंगे। देखिए जनरली हम जाते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर वो बहुत बड़ा है आकार में, फल में, कद्दू खूब बड़ा है सब्जियों में, या गोभी बहुत बड़ी है, इतना बड़ा गोभी ले रहे हैं, या सेब इतना डबल है, या केला बहुत बड़ा बड़ा है, या अमरूद भी, अरे इलाहाबादी अमरूद, एक अमरूद 2 अमरूद 100 किलो के इतने बड़े बड़े अमरूद, वो कुछ मत खरीदिए। सही सलाह यही है, और ये किताब भी कहती है, पिंक बुक FSSAI की, कि एक्स्ट्रा साइज की कोई चीज मत खरीदिए। हमेशा मध्य, गोल्डन मिडल, जो आपकी साइज, आपके फलों की, सब्जियों की जो मध्यम वर्गीय साइज है, उसी साइज का उत्पाद लीजिए। वही भरपूर है, वही न्यूट्रिशनल वैल्यू लिए हुए है, वही हर तरह से सेफ है। एक्स्ट्रा लार्ज साइज का आप कोई चीज ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई ना कोई वो बंगलिया भाषा में लोचा है, या तो उसकी जो फर्टिलाइजेशन है, जैसे अरे 5 फीट लंबी लौकी या 36 फीट ऊंचा गन्ना, वो सब जो सीवरेज की जो सफाई होती है, जो फर्टिलाइजर, कहीं ना कहीं उसमें आपको लोचा है। अगर कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा ग्रोथ की देख रहे हैं तो गड़बड़ है। मध्यम वर्ग का खरीदिए। अब जैसे कि आपको लेना है सब्जी, आलू सब्जियों का राजा कहा जाता है, तो उसमें भी आप सब्जी बनाने के लिए, चिप्स बनाना हो अलग है, वो अलग है, आप उसमें बड़ी साइज ले लीजिए। लेकिन अगर आपको घर में सब्जी के लिए आलू लेना है तो वो छोटे वाला भी नहीं और वो उतना बड़ा वाला भी नहीं, मध्यम वर्ग का, और जो श्रिंकल ना हो, जिसके बाहरी हिस्से पर उसके सिकुड़े हुए ना हो आलू, वो लेना चाहिए। फिर यदि आपको बीटरूट्स वगैरह लेने हैं, चुकंदर वगैरह लेनी है, स्मॉल साइज ले लीजिए। कोई भी आपको फ्रूट लेना हो तो फॉर्म होना चाहिए, दबाने पर आपको अगर वो दब रहा हो बिल्कुल मत लीजिए, कुछ अंदर हो गया है, पहले उसको कहते हैं कि वो पिलपिला हो रहा है, ठीक। अगर आपको ये जैसे कि फिशरीज वगैरह में जाते हैं लोग, मछलियाँ लेते हैं, तो आजकल तो एक अच्छा ट्रेंड है और बहुत सारे शहरों में आ गया है कि वो
पानी में मछलियाँ तैरती रहती हैं और उसमें से लोग निकाल के काट के देते हैं, वो फ्रेश लेते हैं तो वो दीजिए। लेकिन जब वो आंध्र प्रदेश की सप्लाई आती है या कहीं और से आती है, वो हैवी हैवी बर्फ में डाल करके आती है, उसका दाम कुछ कम होता है। उसमें भी आपको देखिए कि वो गलफड़ उठा करके देखते हैं, तो वो ये सारे आपको पैरामीटर्स उसको देखने होंगे। फिर जो साइट्रस फ्रूट्स आपके हैं, तो साइट्रस फ्रूट्स आपके जूसी होने चाहिए, ठीक है। और ये मैं जैसे कि ग्रेप्स की बात करें, तो आप जब दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो वो एक अलग से रखता है, टूटे हुए एक वो उसमें। तो ग्रेप्स भी वही लीजिए कि जो फॉर्म हो, उसके स्टेम से लगे हुए हों, और जितना भी ज़्यादा आप वेरिएशन में जाएंगे ना, कि बिना, देखिए एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी हैं लोग, बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उन सबका स्वागत है। लेकिन फिर भी बाजार उन देसी चीज़ों का तो बना हुआ है ना, देसी परवल, विदेशी परवल, नैया परवल, ग्रेप्स में भी देसी अंगूर, वो बड़ा वाला अंगूर बिना सीड वाला या सीड वाला, हर चीज़ में लीची सीड वाली, बिना सीड वाली। तो ये सारे इन्वेंशंस अच्छे हैं यील्ड के हिसाब से, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहुंच वहाँ पर किसकी है, कितनी है। तो जहाँ तक पहुंच हमारी बनती है, उस एरिया में अगर हम उस चीज़ों को सावधानी के साथ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमको अब मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो मिल्क प्रोडक्ट कैसे लेना चाहिए? पैकेज्ड मिल्क आ रहा है, और एक मिल्क जी सीधे जाते हैं लोग, जो लोग गोपालक हैं या डेयरी हाउसेस हैं, उनके यहाँ से लेके आते हैं। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनके यहाँ अगर सीधे थान से भैंस, गाय, बकरी, जिसके थन से सीधे दूध निकाला जा रहा है, और वो कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो हंसने के लिए आप लोगों को भी बताना चाहिए। डीडी न्यूज पर एक समय आता था मूक बधिरों का समाचार, तो उसमें खाली इशारे से पढ़ा जाता था। तो एक स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव में, अभी मैंने वैसे इशारा कर दिया तो मुझे ये बात आ गई, तो मुलायम सिंह यादव का नाम उस टीवी न्यूज पर एंकर ऐसे देती थी, तो ये मतलब था कि मुलायम सिंह यादव तो जो ठन से ये मुलायम सिंह यादव, तो ये सांकेतिक भाषा की जो न्यूज हुआ करती थी, उसमें अभी वो आती है डीडी को सांकेतिक भाषा की न्यूज समझाने के लिए। तो अब जब थन से सीधे लोग दूध लेकर के आते हैं, तो इसमें कंट्रोवर्सी है। इसमें मैं अपनी कोई फॉर्म ओपिनियन नहीं बना पाया हूँ। दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स हैं कि पैकेज आ रहा है तो न जाने कितने का मिला हुआ है, कितनी गाय भैंसों का मिला हुआ है, और उसमें कहाँ से मिला हुआ है, उनकी जो गाय भैंसे उनके वो दी जा रही थी, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी थी, वो क्या क्या खाई थी, किसान ने क्या क्या खिलाया था, और फिर वो कहाँ से पॉस्चराइज हुई, किस किस प्रोसेस से गई, और आपको सील बंद पैकेट होकर के मिल रही है, और गाढ़ा मीठा एडवर्टीजमेंट 6-7 महीना पहले शुरू हुआ था, और गाढ़ा और मीठा, पता चला कि हाँ एक दूध का ब्रांड आया कंपटीशन में अमूल के। तो ये सब एडवर्टाइजिंग की दुनिया है, ऐसी चल रही है, और इसके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप उससे रोज कहिए कि तुम पानी मिला करके दे रहे हो, इस समस्या से तो मुक्ति है पैकेट वाले में, या तुम क्या कैसे दे रहे हो, या वो सीधे इंजेक्शन लगाता है तब दूता है, कौन अंत में भुक्तभोगी हो रहा है, आप और हम। तो बड़ी दिक्कत है इसमें। अब ये नहीं कि हर कोई घर में गाय पाल ले और एक भैंस पाल ले, ऐसा लोग कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें तो हैं। अच्छा, दही के लिए ये है कि FSSAI बुक भी सजेस्ट करती है कि दही हमेशा घर में बनाई हुई ली जानी चाहिए, और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को, अब पनीर के लिए है FSSAI की पिंक बुक कहती है कि पैकेट पनीर लीजिए, और तो ठीक है, अमूल का भी पैकेट पनीर आ रहा है, सबका पनीर मिल रहा है, बिजनेस, और
ठीक है, वो बहुत कुछ वो सेल्फ लाइफ मेंटेन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सेल्फ लाइफ मेंटेन करते हैं। लेकिन अब बनारस में तो जितनी भी फेमस दुकानें हैं उनके यहाँ पनीर, जितने भी ये दुग्ध व्यवसाय में या मिष्ठान व्यवसाय में, और उनके पनीर बहुत फ्रेश मिलते हैं। 2 बजे के बाद मिलना शुरू होता है, 2 बजे के पहले नहीं मिलता है इन दुकानों पर पनीर, 2 बजे मिलता है, ओपन रहता है, पानी में वो रखे रहते हैं पनीर बना करके, कुछ लोग तो सामने ही निकालते हैं और फिर वो देते हैं। तो किताब के साथ साथ व्यवहारिक भी रहना चाहिए। तो इन चीज़ों को जब आपको खरीदना हो, जैसे कि अब आपको आटा खरीदना है, सबसे बड़ी समस्या, बहुत सारे लोग हैं जो किसान से गेहूं ले रहे हैं, उनको पिसवा रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत सारे लोग आशीर्वाद ब्रांड ले रहे हैं या कोई ब्रांड ले रहे हैं, हर किराना वाला रखा हुआ है, सब में कुछ न कुछ तो लोचा है, सब में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। वो फ्लोर बेकार ना हो, उसमें कीड़े न लगे, उसमें पेस्टिसाइड मिला दिया जाता है। तो इसका उपाय एक ही है कि थोड़ा सा ब्रांडेड लीजिए, और ब्रांडेड लेने के साथ अच्छा ब्रांड लीजिए, अमाउंट कम लीजिए। एक ही बार में सब नहीं ले लेना है कि कोई इतनी स्कीम आई है 1+1 फ्री है, चलो ले आओ। ये 1+1 फ्री एडिबल्स में मत रखिए, वो दिक्कत होती है। ठीक है, अब एक सिंपल सी है, प्याज खरीदने जा रहे हैं, कितने तरीके की प्याज बाजार में मिलती है, कुछ जमी हुई है, कुछ छिलके हुए हुए हैं, तो हमारी FSSAI की बुक कहती है कि नहीं, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। उसी तरीके से ये FSSAI की बुक अनाज खरीदने में कहती है कि नहीं, आप सबका पहले उनका सर्टिफिकेशन देखिए, ISI सर्टिफिकेशन देखिए, FSSAI सर्टिफिकेशन देखिए, आप उनका एग्रीकल्चर एग्रो मार्क का सर्टिफिकेशन देखिए। तो इन सब चीज़ों के प्रति आप अवेयर हो जाइए। आप अपने किराना की दुकान पर गए और फिर वो जो दे दिया आप उठा रहे हैं, उस पर मत जाइए। और ये अभी भारत की जनता में, जो हमारा भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि 60-65% लोग तो यही करते हैं कि जो दिया लेके चले आए। ये परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। जो दुकानदार ने दिया वो लेके चले आए। बहुत कम लोग क्वेरी करते हैं कि इसमें इसका सर्टिफिकेशन की क्वेरी तो और भी कम लोग करते हैं। 80% लोग तो सर्टिफिकेशन को जानते ही नहीं कि सर्टिफिकेशन होता है, जो मिला लेके चले आए। वो अवेयरनेस के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। हम उसीलिए एनालिटिका आयुर्वेदा के साथ पिछले 2-2.5 महीनों से आपके पास आ रहे हैं। हाँ, 2 महीने हो गए। तो ये सब चीज़ें हमें देखना चाहिए कि सीरियल्स में, और जब मिलेट्स में भी खरीदें तो छोटा-छोटा अमाउंट खरीदें, कम अमाउंट खरीदें, कंज्यूम हो जाए, फिर से आएगी आपके रास्ते में। हैवी अमाउंट में रख करके मत लीजिए। और सर्टिफिकेशन जरूर देखिए, ये तो मैं कहूँगा। और दूसरी चीज़ है, आपको ऑयल अगर खरीदना है तो ऑयल में सबसे पहले आपको उसका फ्लो देखना चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी देखनी चाहिए। और ये सब जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने, सफोला ग्रुप ने उसको स्पॉन्सर किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ढेरों कंट्रोवर्सीज हैं। तो मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल, तो उसमें जो नेचुरल एरोमा है वो जाएगी। ये सब चीज़ें 40-45 मिनट में नहीं हो पाएंगी, इनको हम कोशिश करेंगे। और डॉक्टर मोनिशा को ही कहेंगे कि अभी इनके 4 महीने हैं फाइनल ईयर का एग्जाम होने में, तो 1-2 सीरीज ये पिंक बुक पर, ऑयल पर और सीरियल्स पर करें। फूड ऐसा हम लोग बांट लेते हैं, एक हम लोग करते हैं फूड वेजिटेबल्स पर डिटेल्स में, और एक करते हैं ये सीरियल्स और ऑयल पे, और एक करेंगे हाइजीन पे। तो आपका ये पिंक बुक के लिए इसके आप प्रिंट करा लीजिए और इसको रखिए और इसको पूरा अवेयर करिए, और खुद भी अवेयर हो जाइए। और साल्ट, नमक, किसका नमक लें? तो नमक किसका लें? तो आजकल तो ब्लैक साल्ट, काला नमक काफ़ी अच्छा आ रहा है। वो काला नमक मत जाइएगा, जो गोरखपुर में धान का उत्पादन होता है उसका भी नाम काला नमक है। तो ये एक सैंधव नमक, वो मार्केट में बहुत है, उसका रेट 10 गुना 5 गुना, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लोग लेना शुरू कर दिए हैं। और कोई भी चीज़ आप लीजिए इनमें सीरियल्स में, तो ये ध्यान रखिए कि फोर्टिफाइड हो, और वो भी सर्टिफिकेशन उसका हो, उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू और ऐड की गई हो, वो अगर अवेलेबल है तो उसको लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी आज के लिए काफ़ी है, और हम लोग आपके साथ पिंक बुक पे जो और मुद्दे छूट गए हैं उनके साथ आएंगे। फिलहाल आप पुनः एक बार फिर से निवेदन कि पिंक बुक को डाउनलोड ही न करिए, उसको प्रिंट करा करके और ऐसी जगह पर रखिए कि किचन में घुसते समय आप उसको देख सकें। हाँ डॉक्टर मोनिशा, समराइज करिए आप और बताइए क्या। थैंक यू सो मच सर फॉर योर डिस्क्रिप्शन अबाउट द पिंक बुक। आशा करती हूँ मैं आप सबको पिंक बुक के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया है कि पिंक बुक क्या चीज़ें हमें समझाती हैं, कैसे हमें करना चाहिए चीज़ों को और कहाँ करना चाहिए।
एट लास्ट आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है स्वस्थस्य हि स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एन हेल्दी एंड टू मिटिगेट द डिजीज ऑफ एन डिजीज पर्सन। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें पिंक बुक बहुत ज़्यादा सहायक है। लाइक हम एक हेल्दी इंसान का हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं जब हम सटीक खाते हैं या फिर सटीक ठीक अमाउंट में हम खाना कंजप्शन लेते हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से चूज वाइजली एंड ईट वाइजली। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले रविवार। थैंक यू एवरीवन।